I can't see मैम, मैं उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, वो तभी आएगा चैट का। कोई नहीं, आप देख लेना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक वैसे है। आपकी चैटिंग अभी शुरू है क्योंकि बच्चे कर रहे हैं अभी। प्लीज ऐड मी एट व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आ रहा है बच्चों का लिखा हुआ। कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। है क्या मैम, मैं क्या आपको देख स्टार्ट लूं? कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए मैम, ठीक है मैम। स्टार्ट कर दीजिए। So wishing all of you a very good morning and happy Lohri to all of you. So in last class we had certain glitch जिसमें मेरी screen आप लोगों को visible नहीं हुई थी. So I'm going to share my screen with you all once again. Tell me in the chat box whether the screen is visible to you guys today or not. तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये फॉर्मेट्स शेयर किए थे ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम। तो अगर आपको ये विजिबल है, प्लीज राइट येस और नो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल गेट टू नो। Okay, for a group, I'll make a Telegram group and then I'll add you. I'll share the link here. So just tell me whether the screen is available to you all or not. Thanks. Okay, so you can take the screenshot of this trading account that we did in last class. Trading account में हम सारे हमारे जो direct expenses होते हैं, direct expenses for manufacturing, we record all the direct expenses of manufacturing. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे wages, carriage inward, carriage inward, freight, octroi, all these are direct expenses. So opening stock आता है, first opening stock, then we write our purchases. On the credit side, we show our sales and closing stock. So this is the trading account. Next is our profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे हमारे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, selling expenses like advertising expenses, carriage outward, discounts to customers. All these we show on the debit side of our profit and loss account, or credit side पे whatever receipts we get, right? Miscellaneous receipts we show that on a credit side. And you can take the screenshot of this profit and loss account as well. So I'll minimize it a bit so that you can take the screenshot of the entire account in a single page. You can take screenshot of this page. Okay, next is the format of balance sheet. You can take the screenshot of balance sheet here. So I hope you all have taken the screenshots. In last class we did this first question, और इस first question का मैंने आपको solution भी बाद में screenshot के form में दिया था. Right, today we are going to do our second question. You can first take the screenshots and then we will start with the question. So take the screenshot of this question. This is our second question that we are going to do in our class today. Take this picture. Take this picture. And take this screenshot. So I hope you all have got the question.
You have got the question? We'll start doing its solution. Did you all take the question? Just write yes or no. I'll get to know. Clear nahi dikh raha hai. I'll maximize and then show it to you again. And please do it quickly. I hope मैंने थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दिया है, इससे आपको थोड़ा और क्लियर विजिबल हो. Take the screenshot. Take this screenshot. और ये एडजस्टमेंट्स है जिन्हें हम क्लास में करेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए. So I hope now everybody has got it. Okay. मैं एक क्लास के एंड में ग्रुप बनाती हूँ टेलीग्राम का, जो मैं पब्लिश कर दूंगी सबके लिए. आई होप दैट विल हेल्प. अभी लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास. अभी जो हमने ये क्वेश्चन, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. मैं अपना एक्सेल फाइल शेयर कर रही हूँ आपके साथ. तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है. राइट, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 50,000 के. तो लैंड एंड बिल्डिंग इज आवर एसेट. हमने लैंड एंड बिल्डिंग को हमारे एसेट साइड पर शो कर दिया है बैलेंस शीट में. राइट, मैं येलो हाईलाइट्स करती जा रही हूँ, प्लीज कीप सीइंग दैट. नेक्स्ट गिवन है परचेजेस एडजस्टेड 2,10,000. परचेजेस हम शो करते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड, जिसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया परचेजेस 2,10,000 इन द येलो हाईलाइट. राइट, अब यहाँ पर एडजस्टेड लिखा है. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड एडजस्टेड. इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा है. यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड एडजस्टेड. अगला हमारे पास गिवन है स्टॉक 31 मार्च 2021. राइट, 2021 31 मार्च. सो दिस मीन्स दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है तो उसे हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करना है. मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट में शो कर दिया है क्लोजिंग स्टॉक 45,000. अगर जो क्लास में नहीं थे वो ये चीज फिर से नोट कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के बारे में. अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करेंगे. लेकिन अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो हम उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करेंगे. इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे. क्रेडिट साइड पर यहाँ पर भी शो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में गिवन है. सो यू वांट टू, इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन. सो इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन दी trial balance, it will be shown only in the balance sheet on the asset side. But if it is shown in the adjustment, then it will be shown in trading account on credit side, as well as on the balance sheet, in the balance sheet on our asset side. So this is for closing stock. Adjustment closing stock की है ये. Next given है हमारे returns 1500 और 2500. जो डेबिट साइड पे रिटर्न है दैट इज आवर सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट साइड पे रिटर्न्स गिवन है दैट इज आवर परचेज रिटर्न. वो मैंने यहाँ पर सेल्स रिटर्न शो कर दिया है 1500 के अकॉर्डिंगली, एंड परचेज रिटर्न शो कर दिए हैं मैंने 2500 के अकॉर्डिंगली. राइट, नेक्स्ट गिवन टू मी इज वेजेस 45,300. वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे
on the debit side. Next we have salaries, 39,000. So salaries is our indirect expense and we show all the indirect expenses in our profit and loss account. मैंने salaries भी profit and loss account में 39,000 की show कर दी हैं. Next is office expense. Office expense फिर हमारे indirect expenses हैं जिन्हें हम show कर रहे हैं हमारा profit and loss account में 15,400. Right. Next is our carriage inward. Carriage inward is my direct expense. Direct expense है तो trading account में आएगा, वो भी मैंने show कर दिया है trading account में 1200. Carriage inwards. Next is carriage outward. Carriage outward is my indirect expense. So हम इसको profit and loss account में show करेंगे on the debit side. Next we have discounts. Discounts जो debit है, this means we have allowed. Debit side पे मतलब expense है वो, discount allowed है. और जो discount credit side पे है, that is discount received. So जो debit side का discount है, उसको हमने debit side P&L में लिख दिया है. Discount allowed 750 being our indirect expense. और जो discount received है 1200 का, उसको हमने credit side पे लिख दिया है as our income on profit and loss account on credit side. After discounts, we have bad debts. अब bad debts का भी आप ध्यान रखिए. Bad debts भी अगर trial balance में given है, if bad debts are given in the trial balance, we are just going to show them in the profit and loss account on the debit side. Repeating, अगर हमारे जो हमारे bad debts ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे बस डेबिट साइड पे. बाहर गिवन है तो वो हम एडजस्टमेंट करेंगे, मैं अभी उसमें आपको समझा दूंगी. नेक्स्ट इज आवर सेल्स. सेल्स हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दी है. सेल्स ऑन इन माय ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. Next given to me is capital account 1,15,000. Capital हम liability side पे लिखते हैं बैलेंस शीट में, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट में on the liability side. Capital 1,15,000. Next is Chatterjee's loan of 25,000. Right, जो भी brackets में है आगे I am going to read it. But अभी Chatterjee's loan is of 25,000 which I have mentioned on the liability side. हम कोई भी लोन ले रहे हैं वो फर्म की लाइबिलिटी है एंड इट हैज टू बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट. अब ब्रैकेट्स के अंदर चटर्जीज लोन में लिखा हुआ है टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट 18%. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारी एक हिडन एडजस्टमेंट है. जब भी ट्रायल बैलेंस में ऐसे कुछ गिवन हो ब्रैकेट्स में, वहां पर हमें देखना है क्या वो हमारी हिडन एडजस्टमेंट है. So yes, this is our hidden adjustment. अब यहाँ पर लिखा है taken on 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हमारे हो जाते हैं 6 महीने. तो 6 महीने के लिए जो हमने लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है 18% पे. So 25,000 into 18% into 6/12. You can calculate it if you have the calculators. Calculators is permitted in your exams. So please use calculators in the class. मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पे कर रही हूँ. It is 25,000 into 18% into 6/12. So which gives me 2250. So मेरा जो इंटरेस्ट है इस लोन पर वो है 2250. So लोन के साथ साथ में इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, मैंने उसको भी ऐड कर दिया है बैलेंस शीट में. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 2250. और ये जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 2250 का, ये फर्म का एक्सपेंस भी है. तो फर्म का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर भी आएगा, वहां पर भी हम इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन चटर्जीज लोन 2250. राइट, और मैं यहाँ पर ये टोटल अमाउंट लिख रही हूँ इसका 25,000 प्लस 2250 which gives me 27,250. So मैंने आउटर कॉलम में ये अमाउंट भी लिख दिया. नेक्स्ट आफ्टर चटर्जीज लोन गिवन टू अस इज इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस गिवन है हमारे पास 1500 का. राइट,
सो इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस फर्म का एक्सपेंस है। अब इंश्योरेंस के अंदर आई विल टेल यू वन मोर एडजस्टमेंट। अगर गिवन हो लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। यहाँ पर सिर्फ इंश्योरेंस गिवन है, सो ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहे हैं डेबिट साइड पर। लेकिन अगर इंश्योरेंस की जगह लाइफ इंश्योरेंस लिखा होगा, तो लाइफ इंश्योरेंस हमारा प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि वो प्रोप्राइटर की लाइफ पे है, राइट? सो दैट हैज टू बी शोन इन ऑन योर लाइबिलिटी साइड इन कैपिटल। उसको हम कैपिटल में से लेस करके शो करेंगे। रिपीटिंग, अगर लाइफ इंश्योरेंस होगा तो लाइफ इंश्योरेंस हम कैपिटल में से लेस करके शो करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इंश्योरेंस है, सिर्फ इंश्योरेंस हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट गिवन टू अस इज कमीशन 1500। अब कमीशन देखना है, कमीशन हमें गिवन है ऑन द क्रेडिट साइड, व्हिच मींस इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड पे गिवन होती, क्रेडिट साइड पे गिवन है, सो दैट इज द इनकम फॉर द फर्म। सो कमीशन ऑफ 1500 रुपए, 1500 की जो कमीशन है क्रेडिट साइड पे है, इसलिए ये फर्म की इनकम है। इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मिसलेनियस रिसीट्स में शो कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी। ये हमारा एसेट है, इसको हम प्लांट एंड मशीनरी वी आर गोइंग टू शो इट ऑन आवर एसेट साइड। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी हमारा एसेट है, हमने उसको भी एसेट साइड पर शो कर दिया है 20,000। नेक्स्ट वी हैव बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी फर्म का एसेट है, हम इसको एसेट साइड पर ही शो करेंगे। बिल्स रिसीवेबल 20,000। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी एसेट्स हैं, so इसको भी हमने शो कर दिया ऑन द एसेट साइड। नेक्स्ट वी हैव कैश एट बैंक, अगेन इट इज एन एसेट, so we are showing this asset on the asset side of balance sheet. Next is office equipment. Office equipment भी asset है firm का, so we are showing this office equipment 12,000 on the asset side of our balance sheet. After office equipment we have bills payable 12,350. so bills payable हमारे liabilities हैं, so bills payable 12,350 को हम शो करेंगे हमारे liability side पे balance sheet में। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस पेबल 3,300। सो एक्सपेंसेस पेबल क्रेडिट साइड पे लिखा है, यानी ये हमारी लाइबिलिटी है। अगर सिर्फ होते एक्सपेंसेस पेड तो आता हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर, लेकिन ये पेबल है, द फर्म इज येट टू पे दिस, तो इसको हमने शो कर दिया है हमारे क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। सो दिस वाज all given in trial balance. Let us now move to our adjustments. Quickly let us do the adjustments. अब सबसे पहले हमारे पास given है हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की। सो जब भी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, हम जिस एसेट को डेप्रिसिएट करना है उस एसेट में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। राइट, आई एम राइटिंग, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, लेस डेप्रिसिएशन, राइट, एंड देन you have to also show it depreciation on profit and loss account, in profit and loss account on the debit side. So मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्नीचर की depreciation कैलकुलेट कर रही हूँ। So I am writing for फर्नीचर। फर्नीचर पे depreciation given है 15% की। So फर्नीचर की जो कॉस्ट है बुक्स में that is 20,000। 20,000 पे 15% comes out to be 3,000. So फर्नीचर की डेप्रिसिएशन आई एम राइटिंग आउट 3,000। मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज माय एक्सपेंस शो किया है डेबिट साइड पर, और एसेट्स में से मैं ये डेप्रिसिएशन कम कर दूंगी, अमाउंट विल बी 3,000 फॉर डेप्रिसिएशन। सो आउटर कॉलम में मेरा अमाउंट आ जाएगा 20,000 माइनस 3,000, दैट इज 17,000। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग्स 6%। लैंड एंड बिल्डिंग्स हमारे पास हैं 50,000 के, तो 50,000 पे 6% will be 3,000. So I am going to subtract depreciation on land and buildings. I'll write less depreciation 3,000, right? And in my profit and loss account depreciation के अंदर ही मैं land and buildings पर शो कर दूंगी depreciation 3,000.
बिल्डिंग्स में मैं आउटर कॉलम में लिख रही हूँ 47,000, दैट इज 50,000 minus 3,000. Next we have depreciation on plant and machinery at 10%. So plant and machinery मेरा given है 50,000. इस पे depreciation हो जाएगा 10%. So 50,000 पे 10% is 5,000. Outer column में it will come out to be 45,000. And I'll also show in depreciation my depreciation on plant and machinery as 5,000. Next given to us is office equipment 20% depreciation. Office equipment पे 20% depreciation लगाना है. Less depreciation. Office equipment का cost है 12,000. 12,000 पे 20% depreciation is 2,400. So we are going to show it here in profit and loss account as well. Office equipment, which is 2,400. So this was our first adjustment, and I hope it is clear to all of you. So next we have create a provision for bad and doubtful debts at 2% on debtors. So provision for bad and doubtful debts on 2% on debtors. So debtors हमारे पास है 40,000 के. तो सबसे पहले मैं शो कर दूं, कभी कभी जो ये प्रोविजन होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन होता है, राइट. सो यू कैन टेक अ नोट ऑन these bad debts and provision for doubtful debts. इसमें हमें कैसे ट्रीट करना है अगर ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस में भी है और ये हमारे पास एडजस्टमेंट में भी है तब. So, अगर ये हमारे पास अभी तो सिर्फ एडजस्टमेंट में है, सो आई विल शो दैट. सिर्फ एडजस्टमेंट में है, हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमारे डेटर्स हैं 40,000 के, प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है 2%. सो 40,000 का 2% हो जाता है 800 रुपए. सन्ड्री डेटर्स में से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 और मैं यहां पर लिख दूंगी 13 आउटर कॉलम में 39,200. और जो ये मैंने 800 का प्रोविजन क्रिएट किया है, इस 800 के प्रोविजन को हमें बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करना है. प्रोविजन फॉर doubtful debts, which is 800. So we are going to show this provision in our profit and loss account as well. So I'll repeat, हमें इसके अंदर क्या करना है. अगर ये प्रोविजन बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है, अगर प्रोविजन एडजस्टमेंट में गिवन है तो हमें उसको हमारे डेटर्स में से लेस कर देना है, जो प्रोविजन एडजस्टमेंट में गिवन है वो, और उसी जो न्यू प्रोविजन है, दिस जो प्रोविजन हमें एडजस्टमेंट में गिवन होता है, वी कॉल इट न्यू प्रोविजन. So new provision को we are going to subtract from the debtors, and new provision we are going to show on the debit side of our profit and loss account. So confusion ना हो, you can please note it down. New provision you are supposed to subtract from the debtors, and also new provision you are supposed to show on the profit and loss account on debit side. हमारे पास कभी कभी ये जो provision for doubtful debts है, ये एडिशनली, इस एडजस्टमेंट के अलावा एडिशनली ये ट्रायल बैलेंस में भी गिवन होता है. तो उस केस में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली जो भी हमारा ओल्ड प्रोविजन है उसको यहाँ पर लिख देना. जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे वो प्रोविजन लिखना है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है. ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, हमारे पास इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, पर आगे ये एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं जब आपके पास प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में भी गिवन हो. सो जो आपका प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यानी जो ओल्ड प्रोविजन है, उसको आपको सिंपली क्रेडिट साइड पे लिख देना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ नहीं करना उसका. आई होप इट इज क्लियर. और जो न्यू प्रोविजन है उसको डेटर्स में से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करना है. Right. So after provision we have insurance premium includes rupees 250 paid in advance. So 250 paid in advance का insurance premium हम क्या करें, हम इस 250 paid in advance premium, क्योंकि ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, जो हमने इंश्योरेंस यहाँ पे 1500 का दिया है,
इसमें से 250 का हमारा प्रीपेड है, सो हम लेस कर देंगे क्योंकि 250 का जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो इस ईयर को पर्टेन ही नहीं करता. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर prepaid insurance for 250 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट भी हो गया, तो इसलिए हम उसको एसेट्स में भी लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 250. राइट. नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट गिवन है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम. सो 10% पर एनम हमें इंटरेस्ट देना है. कैपिटल हमारी है 1,15,000 की. सो यहाँ पर हम कर देंगे एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना इंटरेस्ट देना है हमें? 1,15,000 पे 10% का 10% का इंटरेस्ट देना है. सो विच कम्स आउट टू बी 11,500. इतना हमने इंटरेस्ट दिया, और ये जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए उस एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी शो करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू कैन राइट इट इन फुल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IOC. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,500. राइट. इसके बाद हमें गिवन है सैलरी टू बेनर्जी 15,000 पर एनम. अब हम सैलरी भी दे रहे हैं प्रोपराइटर को, सो सैलरी भी हम कैपिटल में ऐड कर देंगे. ऐड सैलरी. सो जब तक सैलरी की पेमेंट नहीं हुई है, राइट, यहाँ पे लिखा है सिर्फ प्रोवाइड, पेमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है. पेमेंट कर रहा होता तो उसको हम कैश, हमारा जो कैश है या फिर बैंक अकाउंट है, बैंक में से लेस कर दे. बट द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड. सो टिल द टाइम पेमेंट has not been made to the proprietor, we are going to add salary to his capital only. So यहाँ पर हम सैलरी ऐड कर देंगे 15,000 की कैपिटल के अंदर, और ये जो सैलरी है ये सैलरी भी फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए हम इस सैलरी को भी ऐड कर देंगे हमारे डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000. Next given to us is 10% of the final profits is to be kept in general reserve. So 10% of final profit. Mind the language. It is not written. It is not written net profit. It is just written 10% of the final profit. तो यानी हमारा जो gross profit है उसमें से हम ये सब माइनस करके जो भी प्रॉफिट आता है उसका 10%. नेट प्रॉफिट का 10% नहीं बोला है, सिर्फ फाइनल प्रॉफिट का 10% बोला है. सो बी माइंडफुल ऑफ द लैंग्वेज. नाउ वी आर सपोज्ड टू डू नथिंग बट कैलकुलेट, डू द कैलकुलेशंस एंड find our gross profit. So our gross profit in this question will turn out to be, I am not making the calculations right now in order to save the time. So gross profit, you can do the calculations on your own, and you will find that gross profit will turn out to be 1,29,500. Our gross profit will be 1,29,500, which we are going to transfer to our trading a profit and loss account. So my gross profit is going to be 129,500 जो मैंने लिखा. And again अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 1,29,500 में ये 1,200 और 1,500 ऐड करने हैं, और उसमें से यहाँ पर ये जो भी एक्सपेंसेस हैं इनको लेस कर देना है to find my final profit. So my final profit will come out to be 29,650. मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ साइड में फिगर of my final profit. My final profit will come out to be 29,650. I am not doing the calculations just to save our time. We have to do one more question. So 29,650 जो ये प्रॉफिट आ रहा है, रिपीट कर रही हूँ, ये प्रॉफिट कैसे आया, ये प्रॉफिट आया है इन तीनों को ऐड करके, और उसमें से यहाँ पर जो भी सारी फिगर्स होंगी उनको सब्ट्रैक्ट करके. सो मेरे पास ये आ गया 29,650. सो इस 29,650 का 10% आई हैव टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व.
that is 2965. ये जो ट्रांसफर किया है मैंने 2965 का जनरल रिजर्व में, आई हैव टू शो इट ऑन माय लायबिलिटी साइड एज वेल. रिजर्व्स है, रिजर्व हम शो करते हैं लायबिलिटीज में. सो आई विल शो जनरल रिजर्व which is 2965, and then I'll calculate my net profit after subtracting this 2965. So my net profit will come out to be 26,685. Net profit will come out to be 26,685, and I am going to add this net profit to my capital. Net profit which is 26,685. राइट, इसे हम यहाँ पर ऐड करके टोटल करेंगे, और ये बैलेंस शीट के हम जितने भी हमने आउटर कॉलम में नहीं लिखा है, वी आर गोइंग टू राइट इन आउटर कॉलम एंड वी आर गोइंग टू चेक द टोटल. सो टोटल ऑफ माय बैलेंस शीट विल बी 239050 to be my total of balance sheet on both the sides, 239050. So you can do these calculations and check whether your answers are same as this or not. You can take a screenshot of this final solution, and इसको नहीं लिखना है आपने यहाँ पर, ये मैंने सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो टोटल्स हैं इनको चेक कर लीजिए ये है या नहीं है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट, सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. मैं क्वेश्चंस जो बुक ले रही हूँ, बुक यू कैन बाय इज JR मोंगा, DK गोयल. MCQ नहीं होता, फुल फ्लैश क्वेश्चंस होंगे. अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं, यू कैन बाय DK गोयल, यू कैन बाय BK गोयल और यू कैन बाय JR मोंगा. तीनों में से आप कोई भी बुक ले लीजिए. The first chapter we are doing. Okay, so I am going on to the next question right now. Please once explain. Reserve adjustment, जो transfer to general reserve लिखा है, वो लिखा है 10% of the final profit. So final profit लिखा है, net profit नहीं लिखा, इसलिए हम जो हमारी सारी इनकम है, इनकम में से हम लेस कर देंगे हमारे सारे एक्सपेंसेस, और जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के अंदर से हम 10% का जो प्रॉफिट है उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, टेलीग्राम लिंक के लिए प्लीज अभी मैसेज मत भेजिए, बिकॉज हम लास्ट के अंदर वो डिस्कस कर लेंगे. सो मैं ये क्वेश्चन का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. लेट अस नाउ मूव ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question that we will be doing is this one. So you can take a screenshot. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से.
ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, सो आई विल बी हरिंग अप. आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने. Take the screenshot of this as well. Yes. मैं एक बार मिनिमाइज करके आपको फुल क्वेश्चन दिखा रही हूँ. अगर वो विजिबल हो तो प्लीज उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वो एक ही पेज में दिख जाएगा आपको. अगर ये विजिबल है क्लियरली स्क्रीनशॉट, and take the screenshot. एडजस्टमेंट्स ये है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Right, so I hope everybody has taken the screenshot of this question. Let us now move on to our solution part. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमारा परचेजेस 3,10,000, जिसे हमने शो कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड. फिर गिवन है सेल्स, जिसे हमने शो किया ट्रेडिंग अकाउंट में ही ऑन द क्रेडिट साइड. Next given to us is stock of goods on 1st April 50,000, which means this is our opening stock. So opening stock हम शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में on the debit side, जिसे हमने शो किया है यहाँ पर. Next given to us is cash in hand. cash in hand asset है, हमने शो कर दिया cash in hand को बैलेंस शीट में asset side पर. Next given to us is cash at bank 12,000. cash at bank हमारा asset है, हमने उसे भी शो कर दिया एसेट साइड पर बैलेंस शीट में. नेक्स्ट गिवन टू अस इज कैपिटल 2,77,600. सो कैपिटल हम शो करते हैं लायबिलिटीज साइड में, बैलेंस शीट में वो भी हमने शो कर दिया है हाईलाइटिंग. नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स हम कैपिटल में से लेस करके लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया हमारा ड्रॉइंग्स लेस करके कैपिटल में से लायबिलिटीज साइड पे बैलेंस शीट में. नेक्स्ट गिवन टू अस इज रेट्स एंड टैक्सेस. रेट्स एंड टैक्सेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने रेट्स एंड टैक्सेस लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर. फिर गिवन है सैलरीज 32,000. जो सैलरीज गिवन है 32,000 दैट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसे भी हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर. सैलरीज के बाद है पोस्टेज एंड टेलीफोन, जिसको भी हमने लिखा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ऑन द डेबिट साइड. Next given to us after postage and telephone is salesman commission. salesman commission expense है, indirect expense है, इसलिए P&L में आ जाती है डेबिट साइड पर 35,000. फिर गिवन है इंश्योरेंस 9,000, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट हमेशा याद रखना. इंश्योरेंस 9,000 हमने लिख दिया डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग 17,000. सो एडवर्टाइजिंग हमने लिखा 17,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आफ्टर एडवर्टाइजिंग वी हैव आवर फर्नीचर 22,000. सो फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्म का एसेट है. सो फर्नीचर एंड फिटिंग्स मैंने यहाँ लिख दिया है asset side में of 22,000, which I am highlighting. After furniture we have printing and stationery 3,000. so printing and stationery हमारा indirect expense है, इसलिए printing and stationery indirect expense मैंने अपना profit and loss account में show कर दिया. After printing and stationery we have motor car 48,000, which is our asset, so we are showing it on our asset side in balance sheet. नेक्स्ट वी हैव बैड डेट्स 2,000. बैड डेट्स 2,000 है, ये हमारे गिवन है ट्रायल बैलेंस में. सो जब भी बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे उन्हें हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड, जो हमने शो किया. नेक्स्ट इज डिस्काउंट्स 4,000. अब ये डिस्काउंट गिवन है ऑन डेबिट साइड. सो डेबिट साइड का डिस्काउंट मींस दिस इज आवर डिस्काउंट अलाउड, सो दिस इज आवर एक्सपेंस.
तो हमने ये एक्सपेंस शो कर दिया डेबिट साइड पे, डिस्काउंट 4000, डिस्काउंट अलाउड है ये। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 14,000 के हमारे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हमने शो किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इज आवर कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं उनको लाने का एक्सपेंस है। सो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, वी शो इट इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड इज और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया, राइट। नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया। देन आफ्टर वेजेस वी हैव आवर सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, इसको हम लाइबिलिटीज में शो करेंगे बैलेंस शीट में। फिर हमारे पास है हमारे डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं 1 लाख के, तो इसलिए हम उसको एसेट साइड पर शो करेंगे बैलेंस शीट में। to our adjustments. अब इसके अंदर जो हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, there are going to be some new adjustments, right? So अब इसके अंदर हम देख रहे हैं हमारा closing stock is given in the adjustment. Cost of goods in stock as on 31st March 1,45,000. मैंने लास्ट क्लास में भी और प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होगा तो हम उसे 2 जगह शो करेंगे। एक शो करेंगे उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। So I am writing closing stock. Closing stock है 1,45,000. Next हम शो करेंगे उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ये हमें तब शो करना है 2 जगह जब वो एडजस्टमेंट में गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड पर, एडजस्टमेंट में गिवन है तो इन 2 जगहों पे। नेक्स्ट इज proprietor had withdrawn goods worth rupees 5,000 during the year. So अगर proprietor withdraw कर रहा है goods, so they are considered as drawings, right? So उसको हम drawings ही treat करते हैं। ये new adjustment है, अगर proprietor draw कर रहा है goods को, we consider that as drawings only, right? So this is drawings of goods. I'm writing here for the reference, drawing of goods. तो जो अमाउंट है इसके आगे, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज 5,000, और ये जो 5,000 है, इस 5,000 को वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम दी परचेजेस। जो भी हमारे गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं, गुड्स विड्रॉ चाहे वो सैंपल के पर्पस के लिए हों, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हों, हमेशा परचेजेस में से रिड्यूस होंगे। तो ये एडजस्टमेंट भी ध्यान करना, जब भी गुड्स विड्रॉ करेगा प्रोप्राइटर, या तो उनको एज सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या पर्सनल यूज के लिए, हम उसको परचेजेस में से भी लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ड्रॉइंग्स ऑफ 5,000 जो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं गुड्स, परचेजेस में से मैंने लेस किया है, वन ट्रीटमेंट। एंड द सेकंड इज मैंने कैपिटल में से भी वो ड्रॉइंग्स लेस करी हैं 5,000 की। So next is purchases include purchase of furniture worth rupees 10,000. अब ये जो entry 10,000, this is kind of an error, right? So error और omission की जो entries होती हैं उसके लिए कोई specific treatment नहीं होता, आपको वो देखना पड़ता है वो क्या है और उसके according you have to apply your mind. So इसके अंदर ये कह रहा है purchases include purchase of furniture, यानी हमने purchase करा फर्नीचर, तो हमें फर्नीचर में इंक्रीज करना था, बट फर्नीचर में इंक्रीज करने की जगह हमने उसको परचेज में दिखा दिया, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है। अब इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? हमने जो फर्नीचर में नहीं दिखाया उसे हम फर्नीचर में दिखाएंगे। एंड परचेज्ड, फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, हमने परचेज किया है फर्नीचर वर्थ 10,000। सो इस 10,000 के फर्नीचर को हमने यहां दिखाया, राइट? इस 10,000 के फर्नीचर को मैंने यहां दिखाया, और इसके अलावा क्योंकि मैंने इसको परचेज बुक में से पास कर दिया है, तो मेरी जो परचेज है 10,000 की वो इन्फ्लेटेड है, मुझे उसको रिड्यूस करना है।
So मैं परचेजेस में से लेस कर दूंगी परचेज ऑफ फर्नीचर. So you can write purchase of furniture 10,000. मैंने गलती से यहाँ पे इरेज कर दिया है. Writing it again. Add furniture purchased. Purchase मैंने किया था 10,000 का, which I am adding. Right. Next is debtors include rupees 5,000 bad debts. अब हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स थे और हमारे पास एडजस्टमेंट में भी बैड डेट्स हैं. सो जब डेटर्स जब एडजस्टमेंट में होगा तो उस केस में हमें ये हमारे इनको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स. सो फर्दर बैड डेट्स हम डेटर्स में से लेस कर देंगे. डेटर्स में से वी आर गोइंग टू लेस बैड डेट्स. जो हमारे ये एडिशनल बैड डेट्स हैं वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट व्हिच इज 5,000. और जो बैड डेट्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं उसमें भी हम ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स. So these are our additional bad debts which we are recording. So these further bad debts are worth rupees 5,000. So which I am adding. Repeating, अगर जो bad debts हैं, bad debts हमारे अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसे हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे शो करना है. लेकिन अगर एडजस्टमेंट में भी आ जाएगा तो एडजस्टमेंट में हम डेटर्स में से लेस करेंगे और दूसरा हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वो शो करेंगे. Now next is creditors include a balance of rupees 4,000 to the credit of Zarina. It has been settled only for rupees 1,000. So you read this adjustment carefully. It says creditors के अंदर ये जो हमारे 40,000 के creditors हैं इसमें से 4,000 देने थे जरीना को, बट अब 4,000 की जगह सिर्फ हमें 1,000 रुपए देने हैं. राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. 4,000 की जगह अब सिर्फ 1,000 रुपए देने हैं. इसका मतलब क्या है, 3,000 का जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कम हो रहे हैं. राइट, 3,000 के अगर हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं सो क्रेडिटर्स में से वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम. आई जस्ट राइट जरीना सेटलमेंट. जरीना का सेटलमेंट हमारा 3,000 से कम हो रहे हैं. ठीक है, 4,000 लेस नहीं करना है. 4,000 से डेटर्स कम नहीं हो रहे हैं. ये बहुत कंफ्यूजन होता है. हमारे डेटर्स सिर्फ 3,000 से कम हो रहे हैं. 4,000 वाले डेटर्स को हमने अब सिर्फ 1,000 रुपए देने हैं. तो कम हमारे 4,000 से नहीं हुए हैं, कम हमारे 3,000 से हुए हैं डेटर्स. सो 3,000 वी आर गोइंग टू रिड्यूस फ्रॉम द क्रेडिटर्स. आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 37,000. So और ये जो हमारा सेटलमेंट हुआ है दिस इज काइंड ऑफ अ गेन फॉर द फर्म. सो वी आर गोइंग टू शो दिस गेन also on our profit and loss account on our credit side. So we'll write settlement of Zarina. So settlement of Zarina is benefiting us by 3,000. So I am going to show it as my gain in my profit and loss account on the credit side. Right. So next important entry अब आती है हमारी goods sold on approval basis. This is very important. Goods sold on approval basis. Goods sold on approval basis का मतलब है कि सपोज हम हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स है उन्हें क्लोज करते हैं 31 मार्च को और हमने 25 मार्च को गुड्स भेजे हमारे क्रेडिटर को अप्रूवल हमारे कस्टमर को अप्रूवल बेसिस पे. अप्रूवल बेसिस पे मतलब यानी वो हमारी कंफर्म सेल्स नहीं है. तो अगर कंफर्म सेल्स नहीं है तो जो प्रूडेंस कंसेप्ट होता है वो ये कहता है कि हम रियलाइज नहीं कर सकते वो गेन. तो हमें वो जो अप्रूवल वाली जो सेल है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हम
गुड्स ऑन अप्रूवल भेज रहे हैं, अगर हम गुड्स ऑन अप्रूवल भेज रहे हैं तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स है क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे है, तो हम हमारे डेटर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, और हम हमारा जो स्टॉक है, हम हमारा स्टॉक डिक्रीज कर रहे हैं। ये तीन चीजें हम कर रहे हैं। हम हमारा सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, गुड्स ऑन अप्रूवल वाले केस में हम हमारे डेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं, और हम जो हमारा स्टॉक है उसे डिक्रीज कर रहे हैं। सो हमें जब हमारी सेल्स अप्रूवल पे जा रही हैं 31 मार्च को, अगर वो अप्रूवल पे ही है तो हमें इसको रिवर्स करना है, हम उसको अपनी सेल्स कंसिडर नहीं कर सकते। अगर वो अप्रूवल पे है तो 31 मार्च को उसको, उसका जो इम्पैक्ट है हमें रिवर्स करना है। सो हमने क्योंकि पहले सेल्स इन किया था, तो हम सेल्स अब क्या करेंगे, हम सेल्स को डिक्रीज करेंगे एज रेक्टिफिकेशन। हमने डेटर्स इंक्रीज किए थे, इसलिए हम हमारे डेटर्स भी डिक्रीज करेंगे एज आर रेक्टिफिकेशन। और हमने स्टॉक अपना डिक्रीज किया था, इसलिए हम अपना स्टॉक एज रेक्टिफिकेशन इंक्रीज करेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि किस अमाउंट पे इंक्रीज करना है और किस अमाउंट पे डिक्रीज करना है। सो यू कैन नोट इट डाउन। वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर सेल्स ऑन द इनवॉइस प्राइस। Please note it down quickly. We are going to increase our sales. Sorry, we are going to decrease our sales on the invoice price because हम अपनी जो sales है हमेशा invoice price पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम जो decrease करेंगे, decrease भी invoice price पर ही करेंगे. So decrease the sales on invoice price. Second इसका treatment क्या होगा? Decrease the debtors on the invoice price. और क्योंकि हम स्टॉक की रिकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, सो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्टॉक, इंक्रीज आवर क्लोजिंग स्टॉक ऑन दी कॉस्ट प्राइस। मैं रिपीट कर रही हूं, हमें सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या करना है, जो सेल्स है सेल्स को डिक्रीज करना है एट इनवॉइस प्राइस, डेटर्स को डिक्रीज करना है एट इनवॉइस प्राइस, और जो हमारा स्टॉक है स्टॉक को इंक्रीज करना है एट कॉस्ट प्राइस। हमें स्टॉक को इंक्रीज करना है एट कॉस्ट प्राइस एट टू प्लेसेस, वन इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट इन द क्लोजिंग स्टॉक एंड अदर इन द बैलेंस शीट। सो अगर हमारा बाय चांस ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी गिवन है, तो भी हमें क्लोजिंग स्टॉक में ये अमाउंट दिखाना है, हमारा सेल्स ऑन अप्रूवल वाला। सो लेट अस डू दिस एंट्री। ये एंट्री है, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ सेल्स इंक्लूड वर्थ रुपीज 15,000, राइट। तो 15,000 हमारा इनवॉइस प्राइस है, तो सेल्स में से मैं लेस कर दूंगी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल इज 15,000। इनवॉइस प्राइस डेटर्स में से मैं लेस करूंगी, सेंट ऑन अप्रूवल 15,000, और इसके बाद जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर मुझे ऐड करना है। सो क्लोजिंग स्टॉक मेरा था यहाँ पर 1,45,000 का। आई एम गोइंग टू राइट दिस 1,45,000 इन इनर कॉलम, राइट। और मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ माय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, क्योंकि वो कंफर्म सेल्स नहीं है इसलिए मेरा स्टॉक ऐड हो जाएगा। सो गुड्स ऑन अप्रूवल माय कॉस्ट प्राइस विच इज 10,000, गिवन है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के अंदर 10,000 का, इसे मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी ऐड कर दूंगी ट्रेडिंग अकाउंट में। On approval, cost of goods was 10,000.
सो ये 4 चीजें मुझे करनी है, सेल्स में इम्पैक्ट शो करना है, डेटर्स में इम्पैक्ट शो करना है, और क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। तो इन 4 जगह पे मुझे गुड सेंट ऑन अप्रूवल की एडजस्टमेंट शो करनी है। सेल्स में लेस करेंगे इनवॉइस प्राइस में, डेटर्स में से भी लेस करेंगे इनवॉइस प्राइस पे, और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे हम कॉस्ट प्राइस पे। So next given to me is provision for bad debts is to be created at 5% on sundry debtors. So 5% of sundry debtors पे 5% का हमें प्रोविजन बनाना है। So मेरे डेटर्स अब कितने हैं यहाँ पर? डेटर्स 1 लाख के एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसमें से 5,000 के बैड डेट्स हुए और 15,000 का मेरा सेल ऑन अप्रूवल है। 80,000 के मेरे पास नेट डेटर्स हैं। सो 80,000 पे मुझे प्रोविजन बनाना है। सो लेस प्रोविजन, डेटर्स में से मैं लेस कर रही हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हिच इज 80,000 इंटू 5%। 80,000 के मेरे नेट डेटर्स हैं अभी इन एडजस्टमेंट के बाद। सो प्रोविजन बनता है 4,000 का, 80,000 इंटू 5%। सो ये जो मैंने 4,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है, आई एम गोइंग टू शो इट इन माई P&L अकाउंट एज वेल। Provision for bad debts, so which was 4,000. Next, after this provision is depreciate furniture and fittings by 10%. So मैं यहाँ पर एक ऐड कर रही हूँ depreciation. तो depreciation सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ मेरा फर्नीचर पे। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन इज 10%। सो फर्नीचर की वैल्यू है 22,000 प्लस 10,000। सो 32,000 का फर्नीचर है, तो 32,000 के फर्नीचर पर जो मेरा डेप्रीसिएशन होगा 10%, दैट विल बी 3,200। सो आई विल सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन लेस डेप्रीसिएशन 3,200। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी इसको हम डेप्रिसिएशन में शो कर देंगे फर्नीचर पे 3,200, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा ही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मोटर कार बाय 20%। सो मोटर कार की हमारी वैल्यू है 48,000। 48,000 पर 20% का डेप्रिसिएशन कम्स आउट टू बी 9,600। मोटर कार जो एसेट साइड पर है, मैं वहां पर से लेस कर रही हूँ डेप्रिसिएशन एट 20%, which comes out to be 9,600। और इस 9,600 को मैंने डेप्रिसिएशन में भी दिखाना है। मोटर कार के अंदर भी हमने शो कर दिया डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एट 9,600। लास्ट एडजस्टमेंट इज ऑफ सेल्समैन आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमारी है 4,15,000 minus 15,000, so which is 4 lakh। 4 लाख पे कमीशन देनी है मुझे 10% की, यानी मुझे 40,000 की कमीशन देनी है। 40,000 में से सेल्समैन को मैं यहाँ पर 35,000 की कमीशन दे चुकी हूँ। अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो हम 35,000 की कमीशन ऑलरेडी दे चुके हैं सेल्समैन को। हमें देनी है टोटल कमीशन ऑफ 40,000। सो हमारी एडिशनल कितनी ड्यू है 5,000 की। सो वी आर गोइंग टू राइट commission outstanding is of 5,000, and this outstanding commission is also my liability, so I am going to show it on my liabilities as well. Outstanding commission to salesman, which is 5,000. So this completes my question. अब इसको कंप्लीट करने के बाद यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, राइट? सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन, it will come out to be, you can note it down,
ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन में आएगा, gross profit for this will be 1,80,000. You can calculate it later on. Just due to paucity of time, I'm skipping the calculations. Gross profit will be 1,80,000. My net profit here, net profit will be 1,700. I am going to add this 1,700 to my capital. So add net profit 1,700. And then I'm going to total my balance sheet. The balance sheet का total आ जाएगा 3,12,300. So this will be the total of my balance sheet, and we'll also transfer the gross profit of 1,80,000 here in our profit and loss account. So you can note these total balances, gross profit, net profit, and total of balance sheet, and you can try it. So this is the question. You can take a screenshot of what we have done. So I hope you all have taken the screenshot. Yes, so if you have any questions now, you can please post it. प्रीवियस क्लास आई थिंक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो प्रीवियस क्लास के डाउट्स हैं प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी SOL की वेबसाइट से. यू कैन कॉन्टैक्ट द एडमिन फॉर इट. बैड डेट्स एडिशनल में हो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्लास के अंदर. एडिशनल में हो तो हम उसको डेटर्स में से लेस करेंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स हैं उनके अंदर उसको हम ऐड कर देंगे. आई होप सबको क्वेश्चन क्लियरली दिख गया हो. So class अभिषेक मिश्रा ने जो लिंक सेंड किया है टेलीग्राम का, मैं उसको अपने पास सेव कर रही हूँ. और जो ये अभिषेक मिश्रा का लिंक है टेलीग्राम का, उसको प्लीज यहाँ पर जो भी है क्लास ले रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. आई विल बी अवेलेबल ऑन दैट लिंक. राइट, मैं उसको दोबारा से पोस्ट कर देती हूँ. आई थिंक अभिषेक मिश्रा आपका ये टेलीग्राम का लिंक ही है. ठीक है, ये आपका जो टेलीग्राम का लिंक है. आई एम गोइंग टू ज्वाइन दिस ग्रुप and you all can join this group as well. ठीक है, this link is created by Abhishek Mishra. I'm repeating for the reference. And Abhishek Mishra, you can just write here. ये Telegram का link ही है ना.
you can write in the question and answer so that we don't face a confusion. So I will join this group, and if you have doubts, you can ask there. So should I end this class? ओके मैम, फिर क्लास को एंड कर दूं मैं आपकी? जी मैम. हाँ जी मैम, मैं आपकी क्लास को एंड कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, yes ma'am, you can end the class. ओके, थैंक यू मैम.